محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قربانی کے مسائل سے واقفیت رکھیں اور قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے آج قربانی کے مسائل کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلی 2 ویڈیو جو میں نے بنائی ہے عقیدہ پر، وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ابھی تک نہیں دیکھے ہیں ان دونوں ویڈیوز کو تو برائے کرم ان دونوں ویڈیوز کو دیکھیے اور رائے دیجیے اپنی کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم قربانی کے بیان کو پڑھیں گے۔ قربانی کے فقہی مسائل کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ کچھ عبادتیں خالص بدنی عبادت ہیں اور کچھ مالی عبادت ہیں۔ جیسے کہ نماز، یہ ایک بدنی عبادت ہے، اس میں مال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادت ہے، اس میں بدن کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور کچھ اس طرح کے ہیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی وہ عبادت مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ جیسے حج، اس میں مال کا بھی عمل دخل ہے اور بدن کا بھی عمل دخل ہے۔ قربانی بھی انہی عبادت میں سے ایک عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے۔ اتنا جاننے کے بعد ایک بات اور ذہن نشی کر لیں کہ قربانی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث وغیرہ میں آپ اگر بحر شریعت ہی کا مطالعہ کریں تو سب سے اوپر قربانی کے فضائل میں احادیث اور آیت کریمہ پیش کیے ہیں مصنف علی الرحمٰن نے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اوائڈ کر کے چلیں گے، کیونکہ ہمیں مسائل سیکھنا ہے، اس لیے ہم مسائل پر بحث کریں گے، مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے، یعنی قربانی کے کئی اقسام ہیں اور انہی قسم میں سے ایک قسم ہے قربانی غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ فقیر پر واجب ہے، واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ یہ 3 صورتیں ہوئی قربانی کرنے کی۔ قربانی کے 3 اقسام ہو گئے۔ ایک کیا ہے کہ غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے، ایک قسم کیا ہے فقیر پر واجب ہے، غنی پر واجب نہیں، اور تیسری قسم کیا ہے غنی پر واجب ہے، فقیر پر واجب نہیں۔ اب اس کی تفصیلی صورت دیکھیے کہ یہ صورتیں کیسے بنتی ہے، کیسے آتی ہیں۔ دونوں پر واجب ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یا یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ یعنی پہلی صورت جو فقیر اور غریب دونوں پر واجب ہے، فقیر اور غنی دونوں پر واجب ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ قربانی جو ہے منت کا قربانی ہے، یعنی کوئی انسان منت مانے، کوئی انسان فقیر ہے اور یا غنی ہے، دونوں میں سے کوئی منت مانے کہ یہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کروں گا، اللہ کی راہ میں اس بکری کو قربان کروں گا، تو جب وہ کام ہو جائے، منت پورا کرنا ہو ان کو، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے فقیر ہو۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر نہ ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اور غنی اگر خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی، یعنی صرف فقیر پر واجب ہے، غنی پر واجب نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر آدمی ہے لیکن انہوں نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو اب اس فقیر پر
उस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर गनी खरीदता तो उस ख़रीदने की वजह से सिर्फ़ उस गनी पर कुर्बानी करना वाजिब ना होती। ये दूसरी सूरत है। तीसरी सूरत, गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो। इसकी सूरत यह है कि कुर्बानी का वजूब ना ख़रीदने से हो ना मिन्नत मानने से, यानी कुर्बानी का ताल्लुक़ जो है, ये कुर्बानी जो तीसरी किस्म की कुर्बानी है जो फ़कीर पर वाजिब नहीं है, गनी पर वाजिब है, इसकी सूरत यह है कि वह मिन्नत का कुर्बानी ना हो और ना ही जानवर के ख़रीदने से उसका ताल्लुक़ हो, बल्कि खुदा ने जो उसे ज़िंदा रखा है उसके शुक्रिया में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के इह्या में जो कुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ़ गनी पर है। यानी जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं, वो कुर्बानी करना सिर्फ़ गनी पर वाजिब है, फ़कीर पर वाजिब नहीं है। अब यहाँ से हम देखते हैं कुर्बानी के मसाइल के बारे में। मसला नंबर 1, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की तो ये ततव्वुअ है, और फ़कीर ने अगर ना मिन्नत मानी हो ना कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा हो, उसका कुर्बानी करना भी ततव्वुअ है। यहाँ से ये बता रहे हैं पहले मसला में कि मुसाफिर, अगर कोई इंसान पर कुर्बानी वाजिब है मुकीम होने की सूरत में, अब वो सफ़र कर रहा है, मुसाफिर हो गया है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर मुसाफिर कुर्बानी करना चाहे और सफ़र ही के दौरान वो कुर्बानी कर भी दे तो ये नफ़ल है। इसी तरह फ़कीर पर वो कुर्बानी वाजिब नहीं जो हज़रत इब्राहीम के सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए करते हैं। तो अगर वो फ़कीर भी कुर्बानी करे तो ये भी उसके लिए नफ़ल है। मसला नंबर 2, बकरी का मालिक था, कोई इंसान बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नियत कर ली, या ख़रीदने के वक्त कुर्बानी की नियत ना थी, बाद में नियत कर ली, तो उससे कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ये मसला ज़ाहिर है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने के शराइत ये हैं, यानी कुर्बानी वाजिब होने के लिए क्या क्या शराइतें हैं उनका ज़िक्र हो रहा है। यहाँ से ध्यान से देखें। इस्लाम, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी कुर्बानी वाजिब होने के लिए सबसे पहले उस आदमी का मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर कोई काफिर है या मुशरिक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? इकामत, यानी मुकीम होना, यानी उसका मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी इकामत से मुराद ये है कि इंसान सफ़र के हालत में ना हो, बल्कि इकामत किसी जगह वो मुकीम हो, क्योंकि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। उसके बाद क्या है? 3 नंबर तोंगिरी, यानी मालिक निसाब होना। यहाँ मालदारी से मुराद वही है जिससे सदकाए फ़ित्र वाजिब होता है, और वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। यानी मालिक निसाब से मुराद यहाँ क्या है? जिस मालदारी की वजह से सदका फ़ित्र वाजिब होता है वही यहाँ पे मालिक निसाब मुराद है, और वो नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। 4 नंबर क्या है? हुर्रियत, यानी आज़ाद होना। आदमी का आज़ाद होना ज़रूरी है कुर्बानी वाजिब होने के लिए। जो आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, कि ग़ुलाम के पास माल ही नहीं है या माल ही नहीं होता है। यानी ग़ुलाम के पास जब माल ही नहीं होता है तो उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि कुर्बानी खालिस एक माली इबादत है, लिहाजा इबादत मालिया उस पर वाजिब नहीं। एक बात और देखिए कि गांव वगैरह में ये गलत फहमियाँ बहुत आम है कि कुर्बानी करने के वक्त औरतें ये समझती हैं कि घर के जो मर्द हैं सिर्फ़ उसके नाम पर ही कुर्बानी करना चाहिए, औरत के नाम पर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये गलत तरीका है। चाहे वो औरत हो या मर्द, शौहर हो या बीवी, उनमें से जो
मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर शोहर के पास माल है, बीवी के पास नहीं है, तो शोहर के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर शोहर के पास माल नहीं है, बीवी के पास माल है, तो बीवी के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, शोहर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर दोनों के पास माल है तो दोनों के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। तो मसला देखिए, मर्द होना उसके लिए शर्त नहीं है, यानी कुर्बानी वाजिब होने के लिए मर्द होना शर्त नहीं है। औरत पर वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है, यानी जिस तरह मर्दों पर कुर्बानी करना वाजिब है इसी तरह औरतों पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। इसके लिए यहाँ से एक मसला बता रहे हैं कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए बुलूग यानी बालिग होना शर्त है या नहीं। इसके लिए बुलूग शर्त है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। और नाबालिग पर वाजिब है तो आया खुद उसके माल से कुर्बानी की जाएगी या उसका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा। यानी इस इबारत का मतलब ये है, कोई बच्चा नाबालिग है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं। अगर वाजिब है तो उस नाबालिग बच्चे के माल से कुर्बानी की जाएगी या उसके बाप के या उनका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा। तो इसका ज़ाहिरुल रिवायत का मतलब ये है कि जिस पर फतवा है, ज़ाहिरी रिवायत क्या है, ज़ाहिरुल रिवायत ये है कि ना खुद नाबालिग पर वाजिब है और ना उसके तरफ से उसके बाप पर वाजिब है, और इसी पर फतवा है। यानी नाबालिग बच्चों पर ना खुद उनके जानिब से उस पर कुर्बानी वाजिब है, ना उसके वालिदैन पर वाजिब है कि उसके तरफ से वो कुर्बानी करे, और इसी पर फतवा है। मसला नंबर 4, मुसाफिर पर अगरचे वाजिब नहीं मगर नफल के तौर पर करे तो कर सकता है, सवाब पाएगा। हज करने वाले जो मुसाफिर हों उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं और मुकीम हो तो वाजिब है। जैसा कि मक्का के रहने वाले हज करे तो चूँकि ये मुसाफिर नहीं इन पर वाजिब होगी। अगर कोई इंडिया से सफ़र करके जा रहा है, पाकिस्तान से सफ़र करके जा रहा है हज करने के लिए, तो वो मुसाफिर है और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, जो हुज्जाज वहाँ के मुकीम हो, मक्का के रहने वाले हो, तो वो मुसाफिर नहीं है बल्कि मुकीम है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब है। मसला नंबर 5, शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं। यानी ये जो ऊपर जो शराइत बयान हुई है उन शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसी के किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वजूब के लिए काफ़ी है। मसलन ऐसा नहीं है कि मालिक निसाब होना और मुसलमान होना और जो और शराइतें बयान की है ये शराइतें पूरे साल पाया जाए तब जाके कुर्बानी वाजिब होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुर्बानी के जो मखसूस अय्याम हैं उन्हीं अय्याम में अगर ये तमाम शराइतें किसी में पाई जाए तो उस पर उसी वक्त कुर्बानी करना वाजिब है। मसलन मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं, एक शख्स इब्तिदाई वक्त कुर्बानी में काफिर था, यानी कुर्बानी के इब्तिदा वक्त में, शुरू के वक्त में काफिर था, फिर मुसलमान हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त बाकी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि दूसरे शराइत भी पाए जाएं। इसी तरह अगर ग़ुलाम था और आज़ाद हो गया उसके लिए भी यही हुक्म है। यानी कुर्बानी के इब्तिदा वक्त में वो ग़ुलाम था और आखिरी वक्त में वो आज़ाद हो गया, और आज़ाद होने के बाद उसके पास माल भी है, यानी जितने माल पर कुर्बानी वाजिब होती है उतना माल भी उनके पास है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है। यूँ ही अव्वल वक्त में मुसाफिर था और असनाए वक्त में मुकीम हो गया, इस पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। या इंसान फ़कीर था और वक्त के अंदर मालदार हो गया तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं से ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आया होगा, और अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या आप कुछ भी दीनी मसाइल सीख रहे हैं तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि अगर कहीं समझने में दिक्कत हो या और कहीं कुछ चीज़ें रह गई हो जिसे समझना चाहिए था मैं नहीं समझाया हूँ,
تو آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے، یا پھر آپ لوگ مجھے پرسنل میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور میرے چینل جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور ان دوست احباب کو اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں جو کسی وجہ سے مدارس میں نہ جا کر یا کسی عالم دین کے پاس نہ جا کر دینی مسائل سے ناواقف ہیں، مدرسے میں جا نہیں پائے کسی وجہ سے، یا کسی عالم کے پاس جا نہیں پائے، اور مسائل سے بالکل ہی ناواقف رہ چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ چینل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ یہاں پہ دینی مسائل سنیں گے، اور سننے کے بعد سیکھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔